Hello students, in the last video we discussed about synthetic fibers and plastics. Today we move ahead with the definitions we discussed in the last class. I assigned you work, what are synthetic fibers, what are plastics, okay, how can we get synthetic fibers, etc. We discussed about in the last class. Today we move a step ahead with the last class, okay beta. In the last class I discussed that what are synthetics. We discussed that the material or the substances which are go through synthesized process are called as synthetic products. Then what are fibers? We discussed that all the things which have the threads, whether it is natural or whether it is artificial, it is called as the fibers. And plastic is a material which is light in weight and which is solid. Basically this is called the plastic, and the plastic material is generally formed or it is made in the factories through the chemical process. Okay, we will discuss this about later on, what is plastic and what is the particular property of the plastic. We will discuss this about plastic and its property in another some class beta. Today we once more discuss about natural fibers. What are natural fibers? We learned in the last class that natural fibers are the particular fibers or particular threads which directly come from nature, and we also discussed in the last class that natural fibers are found in two forms, in the plants forms and in the animal form. I again tell you that natural fibers are found in two forms, one from plants and second from animals. The example I have also given you. Plant fibers are like jute, cotton, etc. and wool, silk, etc. is called as the animal fibers. Okay, and we know very well that the fibers are generally used to make the fabrics as well as the clothes. Okay beta. Now these are the natural fibers and this is the composition of natural fibers. Okay, ये एक कंपोजिशन है, कैसे नेचुरल फाइबर्स बनते हैं बेटा. नेचुरल फाइबर्स की बात पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर की तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहा करते हैं. ओके, आर्टिफिशियल फाइबर्स मीन्स द फाइबर्स विच आर मेड इन द फैक्ट्रीज थ्रू द केमिकल प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. और मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी निकलता आता है, द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ synthetic fiber through which we can have a classification among natural fiber as well as the synthetic fiber, that all the natural chemical fibers or the synthetic fibers must have two things. They are made with two things basically. मैं रिपीट कर दूं, बेसिकली सिंथेटिक जो फाइबर हुआ करते हैं उनको दो चीजों से बेसिकली बनाया जाता है. पहली चीज कौन सी होती है पता? ये दीज आर मेड विद द पेट्रोलियम सब्सटेंसेज, ये पेट्रोलियम सब्सटेंसेज से बना हुआ रहता है. और सेकंड इसकी क्वालिटी होती है बेटा, दीज आर मेड विद नेचुरल गैस. वी कैन से दैट द particular substances or the particular threads which are made either with a petroleum substance or natural gas are called as the synthetic fibers. Is that clear? So we have the biggest and the greatest property of a synthetic fibers, that synthetic fibers are made in factories through the chemical process using either petroleum material or natural gas. Is that clear? Now we again come back to the natural fibers. Okay, the chemists through their chemical experiments have come to the conclusion that every natural fiber, I again repeat, through the chemical process, the chemist have come to the conclusion. उन्होंने ये मालूम कर लिया है, केमिस्ट ने, जितने भी केमिस्ट हुआ करते हैं या केमिस्ट जो है जिन्होंने इस बात की खोज कर लिया, दे हैव डिस्कवर्ड द ट्रुथ कि जितने नेचुरल फाइबर्स हुआ करते हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वेदर दे आर एनिमल फाइबर्स और दे आर प्लांट फाइबर्स. ठीक है ना, नेचुरल फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं बेटा जी. तो नेचुरल फाइबर्स भले वो एनिमल फाइबर्स हैं, भले वो प्लांट फाइबर्स हैं, दे कम फ्रॉम ए सिंपल केमिकल मोलिक्यूल. आई कैन रिपीट, जितने नेचुरल फाइबर्स हुआ करते हैं वो सिंपल केमिकल मोलिक्यूल से निकल के आते हैं.
ठीक है ना। और सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल जो होता है, जो सिंगल यूनिट में हुआ करता है बेटा, इसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज मोनोमर्स। ओके, क्या कहा जाता है इसको बेटा? मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स मीन्स एक सिंगल केमिकल यूनिट ही हुआ करती है जो नेचुरल फाइबर्स को बनाया करती है। मैं फिर मोनोमर्स को हम लोग समझते हैं, फिर रिपीट करता हूं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, वेदर दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, मैटर्स नॉट, केमिकल प्रोसेस के थ्रू इट हैज बीन डिस्कवर्ड वेरी अर्लियर, बहुत पहले इस बात का पता लग चुका है कि केमिकल जो फाइबर हुआ नेचुरल फाइबर्स जो हुआ करते हैं बेटा, वो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो बनते किससे हैं? व्हाट इज नेचुरल फाइबर? तो वो किससे बनता है बेटा? एक सिंगल केमिकल मॉलिक्यूल आया करता है, एक सिंगल यूनिट आता है केमिकल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। केमिकल मॉलिक्यूल हुआ करता है, और सिंगल केमिकल मॉलिक्यूल जो हुआ करता है उसको क्या कहते हैं बेटा? मोनोमर्स कहते हैं। अब व्हाट इज मोनोमर्स? तो बेसिकली द वर्ड मोनोमर हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक दो वर्ड से मिलकर बना है मोनोमर्स। कौन कौन से दो वर्ड्स हुआ करते हैं बेटा? पहला कौन सा? मोनो, एंड सेकंड वन इज मर्स। रिपीट कर रहा हूं, पहला वर्ड कौन सा है बेटा? मोनो, एंड सेकंड वर्ड इज मर्स। ओके, मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक को मोनो कहते हैं, और मर्स मीन्स होता है यूनिट, ठीक है ना। तो जो सिंगल यूनिट केमिकल मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है बेटा? नेचुरल फाइबर बनाता है। रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज नेचुरल फाइबर आपसे पूछा जाए, एंड टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। कोई क्वेश्चन हमसे ये पुट अप कर दे, टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, या कोई पूछ ले व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, तो हम लोग मोटा मोटी ऊपरी हम लोग एक सुपरफिशियल डेफिनेशन दे सकते हैं कि नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स और द थ्रेड्स विच आर डायरेक्टली गोट फ्रॉम द नेचर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। बट अगर इसकी हम लोग केमिकल डेफिनेशन दें, बना कैसे नेचुरल फाइबर, तो तब ये निकल के आता है कि केमिकल नेचुरल फाइबर जो होता है इसमें एक सिंगल यूनिट केमिकल यूनिट पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है, और उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा? मोनोमर्स कहते हैं। अब कोई पूछे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली मेड इन द फैक्ट्री थ्रू द केमिकल प्रोसेस। बट क्या चीज यूज की जाती है उसमें? तो यूज क्या किया जाएगा बेटा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वैसे ही अगर नेचुरल फाइबर्स की हम बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर आर मेड विद मोनोमर्स। किससे बनता है नेचुरल फाइबर? किससे बनेगा बेटा? ये किससे बनेगा? ये मोनोमर्स से बनेगा। इज दैट क्लियर? ये किसने मालूम कर लिया? ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू केमिस्ट ने पता लगा लिया है कि नेचुरल फाइबर्स आर मेड विद मोनोमर्स। किससे बनते हैं बेटा? मोनोमर्स से बनते हैं। और मोनोमर्स क्या है? सिंगल यूनिट है। क्या है सिंगल यूनिट? मोनोमर is a simple unit of given chemical molecules, ठीक है ना। केमिकल जो सिंगल केमिकल मॉलिक्यूल होता है उससे क्या बन जाते हैं बेटा? मोनोमर बनते हैं। और ये मोनोमर्स जब आपस में बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं, हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जब बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स मानी मोर देन वन मोनोमर्स। जब दो से चार, चार से छह, छह से आठ मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते थे? पॉलीमर्स बनाते थे। एंड दिस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज लाइक अ चेन, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना रखा है। दिस इज द सिंगल मोनोमर, 1 2 3 4। ओके, दिस इज द मोनोमर, दिस इज द सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल। ये केमिकल मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। ये अलग अलग रखे हुए हैं, दीज आर द डिफरेंट, ये अलग अलग रखे हुए हैं, दीज आर प्लेस्ड सेपरेटली, 1 2 3 4 एंड ऑल आर द मोनोमर्स हियर। ये सारे के सारे क्या बेटा? मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। ओके, अब सिंगल यूनिट बना नहीं पाएगा तो उसकी वजह से क्या हुआ? फिर एक चेन सिस्टम बनता है। देन दे मेक अ चेन फ्रेम, अ चेन सिस्टम। चेन सिस्टम मतलब ये देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ से हमने पिकअप किया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसके बाद दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, फोर्थ फिफ्थ, फिर ये एक पूरा क्या बन गया? एक फाइबर बन गया पूरा, ये पूरा कपड़ा। अब फाइबर से क्या बनेगा? या तो फैब्रिक बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा? क्लॉथ बन जाएगा। ये इसको हम अगर इसको हम लोग ओपन करें, इसको अनटाई कर देते हैं, दीज आर द टाइम्ड फॉर्म। मैंने पहले लिखा हुआ यहाँ पे, दिस इज द टाइड फॉर्म, बंधा हुआ फॉर्म है ये। किसका बेटा? किसका? ये मोनोमर्स का है। व्हेन मोर देन वन मोनोमर इज टाइड itself with another monomer, जब एक मोनोमर जो है वो दूसरे मोनोमर के साथ अपने आप को टाई अप कर लेता है तो क्या बना देता है? ये चेन सिस्टम बना लेता है। दिस इज क्या बनाया? चेन बन गया ना। यहां से शुरू हुआ, कंटिन्यूस चलता जा रहा है, या यहां से शुरू हुआ, ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है। और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, चेन बना लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर। इसको क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमर्स कहते हैं। देखो, व्हेन ए नंबर्स ऑफ ए मोनोमर्स इज जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीमर। रिपीट कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर क्या है? विच आर डायरेक्टली गोट फ्रॉम द नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल और
प्लांट फाइबर। अब ये तो हो गया ऊपरी परिभाषा। अब बात करें बना कैसे, तो नेचुरल फाइबर्स आर मेड विद मोनोमर्स। किससे बनता है बेटा, मोनोमर्स से बनता है। व्हाट इज मोनोमर, तो मोनोमर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बेटा, एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। अब केमिकल मॉलिक्यूल जो ना सिंगल यूनिट केमिकल मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, मोनोमर हो गया, ठीक है। अब अकेला मॉलिक्यूल जो है वो कोई चीज बना नहीं सकता, सिंगल यूनिट कोई चीज बना नहीं पाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, दे फ्रेम अ चेन। देखो फिगर ऑफ चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स, ठीक है ना, फिगर ऑफ चेन्स ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स का जो चेन बन रहा है उसका फिगर बना, और जैसे ही मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं और एक नया फ्रेम बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमर्स कहते हैं। जब मोर देन वन मोनोमर, सपोज दैट दिस इज ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल, डी मॉलिक्यूल, ओके, एंड दे हैव द सिंगल केमिकल सिंगल फॉर्म। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, ये मोनोमर रहेगा, ये मोनोमर्स रहेगा, ये मोनोमर्स रहेगा, बिकॉज मोनो मीन सिंगल। बट एज सुन एज दे फ्रेम, जब एक दूसरे को साथ जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, इन दैट कंडीशन अगर इनको सेपरेट कर देंगे, इस कंडीशन में देखिए हम इसको बाकी सबको हटा दिया, अकेला डी मॉलिक्यूल रख लिया, मोनोमर रख लिया, तो ये मोनोमर है। जब इनको एक साथ हम चेन सिस्टम आते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मोनोमर्स की जगह क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर्स। क्या बनाते हैं इसको, क्या बन गया बेटा, पॉलीमर्स बन गया। इज दैट क्लियर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फाइबर, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सिंथेटिक फाइबर की। इज दैट क्लियर, व्हाट इज नेचुरल फाइबर, दीज आर डायरेक्टली गोट फ्रॉम द नेचर, ओके। ये या तो प्लांट फॉर्म में होंगे या फिर एनिमल फॉर्म में होंगे। बनता किससे, मोनोमर से बनता है। मोनोमर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है, ओके। एंड दिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द केमिस्ट्स। किन्होंने ढूंढा है बेटा, केमिस्ट ने ढूंढा है कि नेचुरल फाइबर बनाने के लिए केमिकल सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, जिनको मोनोमर्स कहते हैं। और ये मोनोमर्स आपस में क्या हो जाते हैं, टाई अप हो जाते हैं, ये चेन बना लेते हैं। चेन बनाने से क्या बनता है बेटा, या तो थ्रेड बनेगा, थ्रेड से फैब्रिक बनेगा और फैब्रिक से क्लॉथ बनेगा। इज दैट क्लियर। सेकंड, नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic fibers. What are synthetic fibers? So I have already told you that synthetic fibers are made or are composed in फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस। किसके थ्रू बनाया जाता है बेटा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। थ्रेड्स तो बनेंगे, इनसे भी या तो फैब्रिक बनेगा या तो क्लॉथ बनेंगे। और बनेंगे किसमें बेटा, फैक्ट्रीज में बनेंगे। फैक्ट्रीज में कैसे बनेंगे, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। अब केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनमें क्या यूज किया जाएगा, आइदर द पेट्रोलियम सबस्टेंसेज, पेट्रोलियम सबस्टेंसेज, या तो क्या बनेगा बेटा, इसमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम सबस्टेंस मिलेंगे, या सेकेंडली क्या मिलेगा बेटा, इसमें नेचुरल गैसेज यूज की जाएंगी, नेचुरल गैसेज, ठीक है, ओके बेटा। तो क्या हुआ सिंथेसिस, सिंथेटिक फाइबर्स क्या हुआ, द फाइबर्स विच आर मेड और विच आर कंपोज्ड और विच आर क्रिएटेड और विच आर व्हाटएवर वी कैन से, जिनको बनाया जाता है किसमें बेटा, फैक्ट्री में बनाया जाता है। फैक्ट्री में बनाने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल प्रोसेस किया जाएगा, थ्रू द केमिकल प्रोसेस, थ्रू द केमिकल प्रोसेस। किसके थ्रू आएगा बेटा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू आएगा। और इस केमिकल प्रोसेस में क्या यूज करेंगे, पेट्रोलियम सबस्टेंसेस यूज करेंगे या फिर नेचुरल गैसेस यूज करेंगे। एंड थ्रू दिस प्रोसेस व्हेन एनी फाइबर इज फाउंड और इज गॉट, इट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक फाइबर। इज दैट क्लियर, प्रोसेस वही रहेगा। यहां पर भी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, यहां पे मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़े जाते हैं, वहां आपस में जुड़ जाते हैं। नेचुरल में क्या होता है, हर चीज ऑटोमेटिक होती है, और सिंथेटिक में क्या रहेगा, एवरीथिंग इज कंपोज्ड, ठीक है ना, वो अपने आप बनते हैं, यहां पे बनाए जाते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद बात करते हैं, एक और वर्ड आ रहा है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। अभी वर्ड आया था एक पॉलीमर, वर्ड आया था एक कौन सा, पॉलीमर, ठीक है ना, ओके। अभी बात कर रहे हैं किसकी बेटा, पॉलीमराइजेशन। एक और वर्ड निकल के आता है, पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहेंगे, ओके। द प्रोसेस थ्रू विच द आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। मैंने पहले कहा था कि अगर सिंगल यूनिट है तो नोबडी कैन फ्रेम एनीथिंग, नथिंग कैन फ्रेम एनीथिंग। टू मेक समथिंग वी आर टू बाउंड एंड वी आर टू कंबाइंड विद समथिंग। हमें किसी न किसी चीज के साथ जुड़ना पड़ता है अगर हमें कुछ बनाना है तो, ठीक है ना। अकेला ब्रिक जो है, अकेला ईंट जो है मकान नहीं बना पाएगा। मकान बनाने के ब्रिक के साथ हमें सीमेंट लगाना पड़ेगा, उसके साथ स्टील लगाना पड़ता है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या, तब जाके मकान खड़ा होता है। अकेला स्टील मकान नहीं बना सकता है, ठीक है ना। हम स्कूल की बात करते हैं, अकेला स्टूडेंट स्कूल नहीं होता है। स्कूल बनाने के लिए उसमें एक बिल्डिंग होनी चाहिए, स्टूल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। इन दैट कंडीशन वी मेक अ स्कूल,
ठीक है ना, उनका पढ़ाना होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके स्कूल बनता है। खाली पड़ा हुआ बिल्डिंग स्कूल नहीं होता है। क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर नहीं तो स्कूल नहीं है, ठीक है ना। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स नहीं है तो स्कूल नहीं है। इसके लिए सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इन द सेम प्रोसेस व्हाइल अ सिंगल मॉलिक्यूल इज देयर, वो क्या नहीं बना पाएगा बेटा, फैब्रिक नहीं बना पाएगा, वो क्लॉथ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, वो थ्रेड रहेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जब हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम सबस्टांसेज और नेचुरल गैसेज के थ्रू क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस से एक फाइबर बना लेते हैं, तो ऐसा फाइबर क्या कहलाता है बेटा, सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन मींस क्या होगा, द प्रोसेस थ्रू विच द आर्टिफिशियल फाइबर मींस द सिंथेटिक फाइबर इज मेड फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। जब सिंपल मॉलिक्यूल को आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, मिलाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, द प्रोसेस थ्रू विच द आर्टिफिशियल फाइबर मींस द सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है, क्या करना बेटा, पेट्रोलियम सबस्टांस से और नेचुरल गैसेस का यूज करते हुए केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिंथेटिक फाइबर बनाने का जो प्रोसेस है, इनको दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए आप, फिर से रिपीट कर रहे हैं। हाउ नेचुरल फाइबर्स are made in a natural process. How natural fibers are made in a natural process. 2. What are synthetic fibers? What are synthetic fibers? Question number 3. Define monomers and polymers. Define monomers and polymers. Question number 4. What is polymerization? What is polymerization? Okay beta, if you have any doubt you can call me on your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.